Hello student, myself Sonam Singh. Today we will discuss a new chapter from your history, which is vital villages and thriving towns. Firstly, we will know about what is the meaning of the vital and what is the meaning of thriving. So, meaning of vital is important and meaning of thriving is developed, prosperous and flourished. So, in this chapter, we will read about some important villages and some flourished town. So in this chapter we are also know how the villages and towns are flourished in the ancient time through the different using of different tools, using different of method to flourish or developed these towns and villages. Firstly we will discuss about the iron tools and agriculture. Firstly we will start this chapter from agriculture. In ancient time, agricultural tools are made up of from woods, but after that it made up of irons. So people or farmers start using iron tools for their agriculture, which is increase the production of their crops. Okay, which is increase the production of their crops. And in this chapter we also going to know that how archaeologists found these materials, these objects from the ancient time, and they came to know about these tools and these materials. फर्स्टली देखिए क्या था आपका आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. तो जब वुड है, वुड के जो टूल्स हैं वो यूज़ किया करते थे एग्रीकल्चर में एंड फार्मिंग में, तो उनमें क्या होता था, उनको बहुत ही ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उनका इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ करता था, इतना ज़्यादा जो है उसमें इंक्रीजमेंट नहीं होती थी. बट जैसे ही उन्होंने क्या किया, आयरन टूल्स जो हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट किया अपने एग्रीकल्चर के उसमें, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया था, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था. ठीक है, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था उस टाइम में. So, what are the other steps which increase the production? तो एग्रीकल्चर में और भी कुछ स्टेप्स लिए गए थे. फर्स्टली तो आयरन टूल्स लिया गया था, जो वुड के प्लेस पे क्या किया गया, आयरन टूल्स लिया गया. सेकेंडली उन्होंने क्या किया था, इरिगेशन को स्टार्ट किया. तो इरिगेशन जब उन्होंने स्टार्ट किया तो इरिगेशन जो है इसके हेल्प से क्या हो गया कि जो विलेजेस है वो और भी ज़्यादा फ्लरिश्ड हो गए, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. क्योंकि विदाउट इरिगेशन हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो क्रॉप है उसको हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डेवलप नहीं कर सकते हैं. क्योंकि जो इरिगेशन है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing in growing any crop. So what are the sources from which we use irrigation? Then that time built during the include canals, wells, tanks and artificial lake. That time we are using, and present time also, canals, wells, tanks and artificial lake for the irrigation of the crops. Now so if we look the chart, we will find that of some stages in the construction of irrigation work are mentioned. So here a chart which mention the some process or some construction of irrigation where workers are doing works. So labor is provided by the people. Farmer also benefit because crop production is more certain. Farmer have to increase production to pay taxes. Kings provide money and plan irrigation work. तो that time उस टाइमिंग में आपका क्या होता था कि जो लेबर है वो क्या किए जाते थे, लोगों को प्रोवाइड किए जाते थे. जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता था. क्यों? क्योंकि उनके जो क्रॉप थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था, और जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की वजह से किंग को जो है वो बहुत अच्छे से टैक्स जो है पे कर पा रहे थे. और जो किंग थे, किंग भी क्या करते थे, जो इरिगेशन है, इरिगेशन के लिए वो जो मनी है वो प्रोवाइड करते थे. बहुत सारे प्लान यूज़ किया करते थे कि कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से जो है इरिगेशन जो जितने भी फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन, हु लिव्ड इन द विलेजेस. हमने इरिगेशन की बात कर ली, हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली. अब हमें क्या देखना है कि जो विलेज है इसमें रहता कौन था. देयर वर एटलीस्ट थ्री काइंड्स ऑफ पीपल विच इज़ लिव इन द विलेजेस in the southern and the northern part of the subcontinents. Firstly, if we will discuss about the Tamil region, large landowners are known as the Vellalar. ऑर्डिनर प्लगमैन आर नोन एज द उजावर. तो यहाँ पे देखिए तमिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनको वेललार कहते हैं, और जो आपके ऑर्डिनरी प्लगमैन है यानी साधारण जो भी लोग हैं वहाँ पे, तो उनको क्या कहते थे, उजावर कहते थे. एंड लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कादेशियार एंड अधिमई. तो यहाँ पे और जो है जिनके पास क्या था, कोई लैंड नहीं था, वो लेबर थे, और ऐसे भी लोग थे जो स्लेव्स थे, उनको क्या कहा जाता था, कादेशियार कहा जाता था या अधिमई कहा जाता था. ठीक है.
फिर देखिए आपको बता रहा है कि इन द नॉर्दर्न, ये हमने अब कहाँ की बात की, ये हमने साउथ की बात की, तमिल रीजन की बात की। अब हम देखते हैं कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में क्या है, जो विलेज का हेडमैन होता है, व्हाट वी कॉल देम ग्राम भोजका, यूजली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली। तो एक ही फैमिली से क्या होता था कि ये जो हेडमैन होते थे विलेज के, ये एक ही फैमिली से क्या होते थे, काफ़ी टाइम तक जो है ये पोजीशन जो है इनको जो है इनको पोजीशन गेन किया जाता था। यही क्या करते थे, बार बार जो है इसी फैमिली के किसी ना किसी मेंबर को क्या किया जाता था, गांव का जो है हेडमैन बना दिया जाता था। द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, क्योंकि जो ग्राम भोजका वही बनते थे जिनके पास क्या थे, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, और उनके पास क्या होते थे, स्लेव्स हुआ करते थे, उनके पास वर्कर्स रहते थे जो क्या करते थे, उनका जो भी लैंड रहता था, उनकी जो भी ज़मीन रहती थी उस पर जा करके काम करते थे। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, तो ये क्या करते थे, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। तो किंग क्या करते थे, इनको काम देते थे कि ये क्या करें, विलेजेस से जो है अदर फार्मर्स हैं उनसे क्या करें, ये टैक्स जो है टैक्स को कलेक्ट करें, और टैक्स को कलेक्ट करने के बाद से ये क्या करें, ये जो है किंग को वापस ले जा करके उनको दे दें। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, एक तरीके से ये जॉब भी करते थे। ये जो ग्राम भोजका हैं, जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं, ये क्या करते थे, एक तरीके से ये वर्क भी कर रहे हैं, किसका वर्क कर रहे हैं, किंग का वर्क कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर्स इंडिपेंडेंट फार्मर्स, मतलब वहाँ पे ग्राम भोजका एक विलेज में तो होते ही होते थे, नॉर्दर्न पार्ट की बात हो रही है, यहाँ पे ग्राम भोजका तो होते ही होते थे, साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी फार्मर होते थे जिनके पास क्या थी, थोड़ी ज़मीन हुआ करती थी, और वो इंडिपेंडेंट फार्मर हुआ करते थे। इट मीन्स वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहते थे, वो अपना खेती जो है वो खुद करते थे, तो उनको हम कहते हैं गृहपतिस। ठीक है, गृहपतिस, मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉल लैंड ओनर, ये क्या थे, छोटे जो हैं लैंड ओनर्स हुआ करते थे। इवन इसमें जो है एंड देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दास एंड कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड, इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे दास थे, जैसे मैन और वुमेन क्या हो गए, दास हो जाते थे, कर्मकार होते थे, जिनके पास अपना कोई भी ज़मीन नहीं होता था, और वो जो क्या करते थे, दूसरे की ज़मीन पे, ठीक है, दूसरे की ज़मीन पे काम करके और अपना जो भी है लाइफ क्या करते थे, वो सर्वाइव करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो क्राफ्ट पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर्स। एक जो विलेज होता है, विलेज में सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स ही नहीं रहते हैं, वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन्स हो गए। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन्स में आपके कौन से आ जाएंगे, ब्लैक स्मिथ आ जाएंगे, पॉटर हो जाएंगे, कारपेंटर हो जाएंगे एंड वीवर। ठीक है, तो ये ऐसे लोग भी जो हैं वो क्या करते थे, इन विलेजेस में रहते थे। So finding out about cities, stories, travelers, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। अब देखिए जब हम सिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें तो सिटी के बारे में हम जो है वो कैसे जानना स्टार्ट करें, कुछ स्टोरीज से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ट्रैवलर्स जो है वो हमें बताएंगे, या फिर वहाँ का जो स्कल्पचर्स था, ठीक है, जो स्टैचूज थी उसके थ्रू, और आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी आप लोगों को पता है कि व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी, द स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द आर्कियोलॉजी। तो हम आर्कियोलॉजी से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सिटी किस टाइमिंग में कैसी थी। सो यू मे हैव हर्ड ऑफ द जटाकास। जटाकास क्या है आपका, जटाका जो है एक स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी का एक पार्ट है जो उस टाइमिंग में लोग क्या करते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, ठीक है, वो इसको क्या करते थे, सुनाया करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया था, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उन्होंने स्टोरी को लिखा और लिख करके क्या किया, अपने पास में रख लिया। विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। तो ये जो जटाका है इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे जो एक पुअर मैन है वो क्या हो गया था, आपका रिच हो गया था। हेयर द स्टोरी इज़ द क्लेवर पुअर मैन। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि एक क्लेवर पुअर यंग मैन था, जो कि क्या था कि क्या करता था, वो छोटे छोटे पहले उसने बिजनेस जो है करना स्टार्ट किया और उसके थ्रू क्या हो गया, लास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया। पहले वो क्या करता था कि जो भी डेड रेड थे उनको वो ले जा करके, और एक होटल था वहाँ पे वो बेच दिया करता था उनकी कैट्स के लिए। देन आफ्टर क्या हो गया कि एक दिन ऐसी आंधी आई और जो किंग है उनके गार्डन में क्या हो गया था, बहुत सारे जो है वो लीव्स हो गए और ब्रांचेस हो गए जो ट्रीज़ के, वो इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। तो फिर उसने गार्डनर से जा कर के पूछा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ये सब क्लीन कराने में। तो गार्डनर जो है वो एग्री हो गया, बट इसने एक शर्त रखी कि जितने भी ये लीव्स होंगे और जितनी भी ये इसमें लकड़ियाँ होंगी वो आप मुझे दे दीजिएगा।
देन गार्डनर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये लेकर के गया। फिर उसके बाद से जब पहले ये गया जाता है और वहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनसे वो बोल देता है कि आप बच्चों को क्या करिए, बच्चे कहता है उनसे कि आप जाइए सब लोग और जा करके जितनी भी लीव्स हैं और जितनी भी ये लकड़ियाँ हैं उनको अलग अलग जो है आप रख देना, उसके बदले में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को जो है वो स्वीट्स दूंगा। तो बच्चे जाते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से उस गार्डन को साफ़ कर देते हैं। फिर ये आदमी जाता है और जो भी गेट रहता है, जो एंट्रेंस रहता है, तो किंग का जो पैलेस रहता है उसके एंट्रेंस पे जाता है और जा कर के वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ों को रख देता है। तो वहाँ पे जो किंग का जो पॉटर है वो क्या करता है, यानी जो पॉट बनाते हैं उनको पॉटर बोलते हैं, तो वो किंग का रहता है। तो वो क्या करता है, ऐसी लकड़ियों को ढूंढता रहता है कि जब वो अपने पॉट्स बनाएगा तो वो लकड़ियों से ही पकाएगा। फिर वो जाता है देखता है, तो जैसे ही वो देखता है तो फिर वो क्या करता है, उसे वो बहुत सारे पैसे देता है और देने के बाद से वो लकड़ियाँ खरीद लेता है। फिर इसके दिमाग में जो है वो अलग ही प्लान आता है। ये क्या करता है कि बहुत सारे जो है एक जार भरता है, जार भर के लेके जाता है, जिसमें कि जार भरता है उसमें पानी लेकर के जाता है, सॉरी एक जार रहता है उसमें पानी भर कर के लेके जाता है। और वहाँ पे ग्रास कटर होते हैं, यानी घास काटने वाले लोग होते हैं। तो वो 500 ग्रास कटर को क्या करता है, जा करके पानी पिलाता है। तो फिर वो सब बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो और जब आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि ठीक है, जब भी मुझे आप लोगों से हेल्प चाहिए होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर उसके बाद से जो है इसका एक फ्रेंड होता है, वो ट्रेडर होता है। तो वो ट्रेडर फ्रेंड इसको बताता है कि यहाँ पे एक डीलर आने वाला है, हॉर्स डीलर आने वाला है, जिसके जो है 500 जो है हॉर्सेस हैं, जो आकर के इस टाउन में वो जिनकी डीलिंग करने वाला है। फिर ये आदमी जाता है और जाकर के सारे ग्रास कटर से बोलता है कि मुझे जो है सबसे जो है एक एक बंडल ग्रास चाहिए। तो वो 500 ग्रास कटर्स को पानी पिलाए रहता है। तो वो सब लोग इसे एक एक बंडल देते हैं, तो इसके पास 500 जो है वो ग्रास के बंडल हो जाते हैं। इसके बाद ये बोलता है कि आप लोग जो है तब तक ग्रास नहीं बेचोगे जब तक कि कल मेरे ग्रास बिक नहीं जाए। फिर जैसे ही वो जो ग्रास वो हॉर्स डीलर है जब वो आता है तो कोई भी अपना जो ग्रास है वो बेचने के लिए तैयार नहीं रहता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये अपने सारे ग्रासेस बेचता है, जिसको क्या होता है कि इसको है वो जो है 1000 जो है वो कॉइन्स देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है। तो इसमें हमें ये फाइंड करना है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन को जो है वो ट्राई करता है। इस स्टोरी में जितने भी ऑक्यूपेशन है ये आप लोग का वर्क है कि आप लोगों को इसमें से क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो ट्राई करता है। फिर इसके साथ ही देखिए हमें कहा जा रहा है कि वी हैव अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस ऑल्सो, जो है हमें सिटीज़ से और भी एविडेंस मिले हैं। जस्ट लाइक देखिए क्या मिला है आपको, स्कल्पचर्स मिले हुए हैं एंड विलेजेस एज वेल एज द फॉरेस्ट। मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर्स were used to decorate railing, pillars and gateway of building that were visited by people। तो ऐसे स्कल्पचर्स मिले हुए हैं जो स्टोन्स पे थे, जिसमें लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसे स्कल्पचर्स मिले थे जिनका यूज़ क्या किया जाता है, अब जो दीवार हैं, जो वॉल्स हैं उनको डेकोरेट करने में, जो पिलर्स हैं उनको डेकोरेट किया जाता है। इवन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जो रेलिंग्स है उसको डेकोरेट किया जाता है जहाँ से भी लोग आते जाते हैं। Now, many of the cities that developed about from 2500 years ago were capital of the महाजनपद्स। तो महाजनपद्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जो भी इंपॉर्टेंट विलेजेस रहते थे, जो टाउन्स रहते थे, उनको क्या बना दिया जाता था, महाजनपद्स बना दिया जाता था। तो जो ये सिटी है महाजनपद के, इनको क्या किया जाता था, कैपिटल बना दिया जाता था। कब, 2500 ईयर्स अगो पहले। ओके। सम ऑफ दिस सिटीज़ वॉज सराउंडेड बाई मैसिव फोर्टिफिकेशंस वॉल। तो यहाँ पे कुछ सिटीज़ ऐसी भी हैं जो क्या है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो वॉल्स हैं, बहुत मैसिव वॉल्स हैं, उनसे क्या है ये पूरी की पूरी सिटी आपकी सराउंडेड है। इन मैनी सिटी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स ऑफ सिरेमिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स, देयर आर नोन एज रिंगवेल। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनको क्या मिला है कि ऐसे भी मतलब पॉट्स मिले हैं जो कि एक लाइन से थे, यानी एक रो में थे, और किस चीज़ के थे, सिरेमिक रिंग्स लगे हुए थे उनके एक के ऊपर एक करके, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रिंग वेल्स। दिस सिम्स टू हैव बीन यूज्ड एंड टॉयलेट इन सम केसेस एंड सच एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प। तो वहाँ पे वो जो है जो भी आपका रिंग वेल है वो किस लिए यूज़ किया जाता था, कुछ प्रोसेस में आपका वो टॉयलेट के लिए यूज़ किया जाता था और कुछ प्लेसेस पे वो ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप के लिए यूज़ किया जाता था। इवन इसके साथ साथ ही जो है जो आपका रिंग वेल है वो पब्लिकली तो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला ही था, इवन जो इंडिविजुअल जो लोग हैं, इंडिविजुअल लोगों के घरों में भी क्या हुआ था, ये जो है रिंग वेल मिला हुआ था। We have hardly any remains of places market।
एंशियंट टाइम में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एंशियंट टाइमिंग में बहुत ही कम ऐसी प्लेसेस बची हुई हैं जो कि क्या है कि अभी भी बची हुई हैं, जैसे कि कोई मार्केट या फिर कोई प्लेसेस जो है या फिर कोई ऐसे पैलेस जो हैं बचे हुए हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है। क्योंकि जैसे जैसे आपका जो है टाइम चेंज होते गया, ईयर्स बीतते गए, तो इसके साथ ही साथ क्या हो गया था कि जो नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी और ये सारी चीज़ें अभी हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। या फिर लोगों को जो है जगह मिला होगा या ज़मीन मिला हुआ है, तो लोगों ने वहाँ क्या कर लिया है, नई बिल्डिंग्स बना ली हैं, नए वहाँ पे क्या आपके गार्डन्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मिलना मुश्किल है। और वो जो थी उस टाइम में वो किस चीज़ के बने हुए रहते थे, वहाँ के पैलेस और वहाँ की चीज़ें उस टाइमिंग में लोग वुड के बनाते थे, मड ब्रिक यूज़ करते थे और जो थेस्ड रूफ हुआ करते थे, ठीक है। तो अभी वो क्या है, तो इतने ज़्यादा दिन तक क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली वो एक ना एक टाइम पे ख़राब हो ही जाएगा। Another way of finding about early cities in the accounts of sailors and travelers who visited them। और फिर दूसरा तरीका एक हमने किसके थ्रू देखा, हमने स्कल्पचर्स के थ्रू देखा, उसके बाद से वहाँ का जो भी बिल्डिंग्स था उसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करके बताया। दूसरा आता है आपका जो सेलर्स होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, यानी जो नाविक होते हैं या फिर यात्री होते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे और जाने के बाद से क्या करते थे कि वहाँ पे कोई भी सिटी देखते थे तो उस सिटी के बारे में आकर के डिस्क्राइब करते थे। ऐसे ही एक ग्रीक सेलर के बारे में बताया गया है जिसने क्या किया था, कुछ ऐसे पॉट्स हैं जिनको पॉट्स को डिस्क्राइब किया था, जब वो घूमने गया था तो उसने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। भरूच, द स्टोरी ऑफ बरगजिया, द ग्रीक नेम ऑफ भरूच। तो एक आपका जो है ग्रीक नेम जो भरूच है, इसको क्या कहा गया है, बरगजिया जो है, वहाँ की स्टोरी बताई गई है कि जो वो सेलर था उसने क्या किया था और क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो जब वो शिप से गया था तो वहाँ पे उसने बताया कि जो वहाँ के लोकल फिशर्समैन होते थे और स्किलफुल पर्सन होते थे, वही जो है उन्हीं को क्या करते थे, एम्प्लॉय करते थे कि वहाँ पे वो विज़िट कर पाए, ठीक है। और जो ये बरगजिया है ये आपका किस लिए इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे जो है इम्पोर्ट हुआ करते थे, वाइन इम्पोर्ट होते थे, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यहाँ से इम्पोर्ट हुआ करते थे। और एक्सपोर्ट क्या क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था आपका प्लांट्स होते थे जो कि हिमालय से था, आइवोरी था, अगेट था, कैरक्लिन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट भी हुआ करती थी। तो यहाँ से जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो मर्चेंट थे यानी कि जो भी व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, वो स्पेशल गिफ्ट जो है वो ख़रीद करके किंग के लिए वहाँ पे ले करके जाया करते थे। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द कॉइन्स। जो कॉइन है, कॉइन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कॉइन के थ्रू भी हमें हिस्ट्री पता चलती है कि ये जो कॉइन है ये किस एरा का है, किस टाइमिंग का है, किस जो कौन से ऐसे किंग थे उस टाइमिंग में जिस टाइमिंग में हमें ये कॉइन मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमें देखिए कॉइन मिला हुआ है, तो ये कॉइन कैसे हैं, पंच्ड कॉइन है, ठीक है, पंच्ड कॉइन है। और ये पंच कॉइन क्या, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सर्वल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। तो इस पीरियड से रिलेटेड क्या हो गया कि यानी 2500 3000 ईयर अगो यहाँ पे जो कॉइन्स मिले हुए थे, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे कॉइन्स मिले हुए हैं। एंड द अर्लीस्ट कॉइन विच वर इन यूज़ अबाउट 500 ईयर्स अगो वर पंच मार्क कॉइन। तो 500 ईयर्स अगो जो कॉइन यूज़ हुआ करते थे वो क्या थे, आपके पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है कि कैसे इस पर पंचिंग की गई है और पंचिंग करके क्या किया गया है, इस पर डिज़ाइंस को बनाया गया है। देखिए पंचमार्क कॉइन क्या होता है, पंचमार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और सम टाइम स्क्वायर और राउंड इन शेप। तो जो पंचमार्क कॉइन है उसका एक स्पेसिफिक जो है आपका शेप नहीं है, वो आपका रेक्टेंगुलर भी है, स्क्वायर भी है और राउंड भी है। और ये किस चीज़ से बनता था, ये किसी भी मेटल को और शीट को जो है वो फ्लैट में काट करके बनाया जाता था। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टम्प्ड। तो इसको इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, यानी इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई नुकीली चीज़ से इंस्क्राइब किया जाता था, इसको स्टम्प किया जाता था, ठीक है, इसको पंच किया जाता था। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं। सो सिटीज़ विथ मैनी फंक्शन। अब जो है अभी तक हमने जो है थोड़े से टाउन्स एंड विलेजेस के बारे में हमने देखा, अब हम ऐसे सिटीज़ के बारे में जानेंगे जिस सिटीज़ में क्या थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हुआ करते थे। फंक्शंस इट मीन्स कि यहाँ पे जो है ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता था और ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो ऐसे जो है सिटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया आपको मथुरा के बारे में। सो मथुरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स।
तो जो मथुरा है आपका 2500 ईयर से क्या है एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट बन गया है। ये क्या है आपका एक रिलीजियस प्लेस भी है, ट्रैवलिंग के लिए भी है और ट्रेडिंग के लिए भी है। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या कहा जा रहा है कि देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सर्वल स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे क्या है आपका ये जो है पूरे जो है फोर्टिफाइड है, स्ट्रॉन्ग सिटी है, वॉल्स हैं, और इसके साथ साथ ही क्या है ये एक होली प्लेस है। स्ट्रीम्स जो है होली प्लेस होता है। यहाँ पे जो है फार्मर्स हैं एंड हर्ड्रेड्स हैं, जो कि क्या करते हैं, जितने भी फार्मर्स और हर्ड्रेड्स हैं तो इस सिटी में क्या करते हैं, लोगों को जो है फूड प्रोवाइड करते हैं। और मथुरा जो है आपका, मथुरा किस लिए और भी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे जो है फाइन स्कल्पचर्स, तो यहाँ पे जो है जितनी भी स्टैचूज़ बनाई जाती हैं बहुत ही फाइन वे में बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ ही जो है मथुरा किसके लिए फेमस है, मथुरा एक रिलीजियस सेंटर है, रिलीजियस सेंटर है। और यहाँ पे जो है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन स्ट्रीम्स, और इसके साथ साथ ही ये क्या है, वर्शिप ऑफ कृष्णा। ऑल वी ऑल नो अबाउट द मथुरा इज सिटी ऑफ द कृष्णा, ठीक है, मथुरा बिलोंग्स टू कृष्णा। तो जब भी हमें मथुरा के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये किससे बिलोंग करता है, ये कृष्णा जी से बिलोंग करता है, लॉर्ड कृष्णा से बिलोंग करता है। और इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि कृष्णा एंड जो मथुरा है इनका क्या रिलेशन है, बट ये क्या है एक बहुत ही होली प्लेस है। यहाँ पे जो लोग हैं बुद्धिस्ट मॉन्क भी पाए जाते हैं, यहाँ पे मोनेस्ट्रीज भी हैं, इसके साथ साथ ही जो हैं वो जैन भी वो भी पाए जाते हैं। Several inscription on surface such in stone slabs and statue have been found in मथुरा। तो मथुरा में क्या कि मथुरा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये क्या है बहुत ही फेमस है, किस चीज़ के लिए, स्टैचू के लिए। सो स्टैचू के लिए फेमस है, तो वहाँ पे भी हमें क्या मिले, बहुत सारे ऐसे स्टोन और स्टैचूज़ मिले हुए हैं, स्टोन सर्फेस मिले हुए, स्टैचूज़ मिले हुए हैं मथुरा में, जो कि क्या करते हैं अर्ली टाइमिंग को डिस्क्राइब करते हैं। सो monasteries there were made by kings and queen, officer, merchants and craft person who live in the city. For inscription from Mathura mention goldsmith। जो मथुरा में जो भी इंस्क्रिप्शन है जो किंग के बारे में बताते हैं, वहाँ के किंग के क्वींस के बारे में, मैन एंड वुमेन्स के बारे में बताते हैं यहाँ के जो इंस्क्रिप्शन है। और ये किसको मेंशन किया गया है, गोल्ड स्मिथ को, ब्लैक स्मिथ को, वीवर्स, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स, ठीक है। तो इन सारे लोगों को इसमें मेंशन किया गया है। ये जो है स्पेशल पर्सन है, कहाँ के पर्सन है, और ये जो फंक्शन है कहाँ के, मथुरा के। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, अब हम किसके बारे में जानेंगे, क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन के बारे में जानेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है ऐसे प्लेसेस को सर्च किया है जहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे क्राफ्ट्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलता है, ऐसे बहुत सारे एविडेंस और प्रूफ मिले हुए हैं। जैसे कि एक था आपका जो है वो फाइन पॉटरी है, जो आपका पॉटरी है, और कैसा वो पॉटरी है आपका, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ये इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ही क्यों पड़ा है, तो जो नॉर्दर्न है ये नॉर्दर्न पार्ट में मिला हुआ है, और ये जो पॉट था ये ब्लैक कलर में, और पॉलिश जो है ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड। जनरली remember that the archaeologists evidence for many crafts have not been survived. We know from exit that the manufacture of cloth was important। तो बहुत सारे एविडेंस जो थे वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हुए थे जो अभी तक क्या है प्रेजेंट टाइम में सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जो क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग थी उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो क्लॉथ जो है उसकी जो इम्पॉर्टेंसी है उसके बारे में हम देखेंगे। दो सिटीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, फर्स्ट वन इज़ वाराणसी एंड सेकेंड वन इज़ मदुरई, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये किसके लिए है, मैन एंड वुमेन जो है यहाँ पे इन सेंटर्स में जो है क्या करते हैं, काम करते हैं, और दोनों जो है अपने अपने क्लॉथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वाराणसी हम जानते हैं, वाराणसी में जो है वो जो वहाँ की साड़ियाँ हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड मदुरई में भी है जो ये साउथ में है आपका, ये भी यहाँ पे कपड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साउथ में के जो कपड़े हैं जैसे कि साड़ियाँ वहाँ की भी है, आपकी कांजीवरम है, सिल्क की साड़ियाँ हैं, ये क्या है बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। मैनी क्राफ्ट पर्सन सच एस मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन। तो बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन जो थे और मर्चेंट्स थे उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसको हम कहते हैं श्रेणीज, एंड दी श्रेणीज क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड। तो ये श्रेणीज जो है इसमें क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन को प्रोवाइड क्या करते थे, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था क्राफ्ट पर्सन को, जिसमें वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते थे, और जितने भी फिनिश्ड गुड हुआ जाते, फिनिश्ड जितने भी प्रोडक्ट होते थे उनको वो जो है अलग अलग ले जा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक where rich men and women deposited money. This was investment and part of the interest was written or used to support religious institutions such as monastery।
जो श्रेणीज़ हैं वो एज अ बैंक भी काम करते थे। वहाँ पे भी जो रिच और मैन और वुमेन रहते थे वो अपनी मनी ला करके यहाँ पर डिपॉजिट करते थे, यानी जमा करते थे। और वो जो है ऐसे पार्ट में रखते थे कि जो भी उस पर इंटरेस्ट हो रहा है तो वो किस चीज़ के लिए सपोर्ट किया जाए, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या फिर जो मोनेस्ट्री है उसको सपोर्ट किया जाए। अब देखिए एक यहाँ पे और हमें नाम मिल रहा है, एक सिटी का नाम मिल रहा है जो कि पौंडीचेरी में है, अरिकमेदु। इसमें हम देखिए क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को, जो हिस्टोरियंस थे उनको मिले हुए थे। तो अरिकमेदु जो है ये आपका कैसा प्लेस है, ये कोस्टल एरिया में था, ठीक है, जहाँ पे क्या होते थे, जो शिप्स हुआ करते थे वो अनलोडेड हुआ करते थे, ठीक है। जो दूर से शिप क्या करते थे, गुड्स को लोड करके लाते थे, तो यहाँ पे क्या करते थे वो लोग, यहाँ पे ही ला करके रखते थे, यहाँ पे अनलोड कर दिया करते थे। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बिन अ वेयर हाउस। तो एक बड़ा सा जो है मैसिव सा ब्रिक का स्ट्रक्चर बना हुआ था, यानी एक दीवार का स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसको ये लोग कैसे यूज़ करते थे, वेयर हाउस, या इट मीन्स कि ये जो है स्टोर हाउस की तरह से यूज़ किया जाता था। और ये बहुत सारी प्लेसेस पे जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिला भी हुआ है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। और कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेडिटेरियन रीजन से क्या देखा है, पॉटरी जो है उनको वो मिली हुई है। एंड सच एज एम4 क्या होता था, आपका ऐसा जार हुआ करता था जिसमें डबल हैंडल हुआ करते थे और ये यूज़ होता था कोई भी जो लिक्विड है या फिर कोई ऑयल है उसको रखने के लिए। स्टैम्प रेड ग्लेस्ड पॉटरी नोन एज एरन वायर। वहाँ पे एक रेड ग्लेस्ड पॉटरी जो थी, रेड ग्लेड यानी कि जो रेड कलर में जो आपकी पॉट्स थे और बहुत शाइन करते थे उनको एरन वेयर भी कहा जाता है। जो किसके बाद नाम पड़ा था, इटली का एक सिटी है जिसके बाद से जो है एरेटीन जो है यहाँ वहाँ से ये नाम पड़ा हुआ था इस पॉट का। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले। और ये कैसे बनाया जाता था, एक आप जो है आपका क्ले है, क्ले से क्या किया जाता था, जो वेट क्ले थे, वेट क्ले को जो है स्टम्प्ड माउल्ड में, यानी कि जो डिज़ाइन हुआ करता था एक स्ट्रक्चर में क्या कहते थे, डाल दिया जाता था वेट क्ले को और उसमें से क्या करते इस पॉट को बना करके निकाला जाता था। So there was yet another kind of pottery which was made locally through Roman designer were used। तो रोमन जो डिज़ाइनर थे वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पॉट्स बनाते थे। इवन जो है वहाँ पे और भी कुछ फेमस चीज़ें थी रोम में, जैसे कि रोमन लैम्प्स थे, रोमन ग्लासवेयर थे एंड जेम्स हैव ऑल्सो फाउंड एट द साइट। तो इस साइड से क्या हुआ है आपका, अरिकमेदी जो है इस साइड से आपको जो है रोमन लैम्प्स मिले हुए हैं, इवन साथ ही साथ इसके ग्लासवेयर्स मिले हुए हैं, जेम्स मिले हुए हैं। स्मॉल टैंक्स हैव बिन फाउंड दैट वर प्रॉबली डायमंड्स। कुछ ऐसे टैंक्स में मिले हुए हैं जो किस लिए यूज़ हुआ करते थे, जो है क्लॉथ को जो है वो डाई करने के लिए यूज़ किया करते थे। डाई मीन्स ये जो है उसका कलर, उसको कलर करने के लिए जो है वो ये जो भी टैंक्स थे ये यूज़ किया जाते थे। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसे एविडेंस, ऐसे प्रूफ मिले हुए हैं जिसके थ्रू लोग क्या करते थे, बीड्स बनाते थे, ठीक है, छोटे छोटे जो है वो कुछ मोतियाँ बनाते थे जिसमें से क्या थे, किससे बनाते थे, कुछ ऐसे सेमी प्रीसियस स्टोन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रीसियस स्टोन्स नहीं थे बट वो भी क्या थे, वो भी वैल्यूएबल हुआ करते थे, और ग्लासेस थे। तो इनके थ्रू ये लोग क्या करते थे, इसमें स्टोन्स जो है बीड्स बनाते थे। तो इसमें जो है इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे जो है डेवलपमेंट जो है वो कैसे स्टार्ट हो रही है। तो देखिए आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि एग्रीकल्चर में कैसे पहले वहाँ टूल्स चेंज हुए, इरिगेशंस हमने देखा है, फिर उसके बाद से हमें और क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं इस चैप्टर में। हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पढ़ा है कि आर्कियोलॉजी के थ्रू जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं ढूंढी हैं, जैसे कि आपका है स्कल्पचर्स हमने देखा है, इसमें कॉइन्स देखा है, यूटेंसिल्स देखा है, पॉट्स देखें। इवन इसके साथ साथ जो वाराणसी और मदुरई जो है ये फेमस है किस चीज़ के लिए, साड़ियों के लिए फेमस है। ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली यही था कि कौन सी चीज़ें कहाँ की फेमस है और किस लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है और कैसे उसको और भी ज़्यादा डेवलप्ड और इम्पॉर्टेंट बताया गया। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।